آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدید برف باری نے تباہی مچا دی۔ برفانی تودے گرنے سمیت مختلف حادثات میں 100 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متعدد گھر بھی برفانی تودوں تلے دب گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا CMH مظفر آباد کا دورہ، لینڈ سلائیڈنگ سے زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، متاثرہ خاندانوں سے ان کو درپیش مسائل دریافت کیے۔ چیف سیکریٹری آزاد کشمیر نے برف باری سے ہونے والے نقصانات سے متعلق بریفنگ دی۔ اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا مشن، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد سے ملاقات۔ حکومتی کمیٹی میں جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور ارباب شہزاد شامل۔ حکومتی کمیٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کو یقین دلایا کہ بلوچستان میں مسائل کا خاتمہ وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ نے نیا نیب قانون لانے کے لیے حکومت کو 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ عدالت نے کہا پارلیمنٹ سے نیا قانون منظور ہونے تک نیب پلی بارگین کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا حکومت نیب قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے۔ 3 ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کرے گی۔ سندھ حکومت نے IG پولیس سید کلیم امام کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی۔ سندھ حکومت کا کلیم امام کی جگہ غلام قادر تھیبو کو IG سندھ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس، سندھ حکومت کا IG سندھ کے خلاف انضباطی کارروائی کا بھی مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کلیم امام نے سندھ حکومت کا اعتماد کھو دیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد سعید غنی نے میڈیا بریفنگ میں بولے IG سندھ نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح فروری 2021 تک بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا گرین لائن منصوبے کی تکمیل میں مدد کی پیشکش کی لیکن وفاق مدد نہیں لینا چاہتا۔ مجھے اس منصوبے میں شامل کر لیا تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ کراچی میں CNG بحران کے خلاف ٹرانسپورٹرز اور CNG ایسوسی ایشن کا احتجاج، سوئی سدرن گیس کمپنی کے سامنے مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے مزدوروں سے روزگار چھین لیا۔ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ پنجاب حکومت کو موصول، حکومت کا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ ریویو کرے گا۔ رپورٹ کی بنیاد پر محکمہ داخلہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی سفارشات مرتب کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا وفاقی حکومت کو عدالت نے 7 دن کا وقت دیا تھا۔ حکومت بتائے مریم نواز کی درخواست پر تاخیر سے فیصلہ کیوں کیا گیا۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ چیف الیکشن کمشنر کے لیے نیا نام سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دورہ حکومت کے اٹارنی جنرل عرفان قادر کا نام تجویز کر دیا۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کے ناموں پر بھی اتفاق ہو گیا۔ برف باری کے بعد برفانی ہواؤں سے بلوچستان میں شدید سردی، قلات کا درجہ حرارت -13 ڈگری تک گر گیا۔ زیارت میں -12 اور کوئٹہ میں -10 ہو گیا۔ اسکردو ایئرپورٹ پر برف باری سے فلائٹ آپریشن بند، لواری ٹنل بند۔ چترال کا 3 روز سے ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ہوا کا لمس جو اپنے کواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے۔ محسن نقوی کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ محسن نقوی نے غزل اور نظم میں بے مثال خزانہ چھوڑا، مرثیہ نگاری سے شہرت حاصل کی۔ محسن نقوی 1996 میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اور پاکستانی بلے باز بابر اعظم ICC ون ڈے ٹیم آف دا ایئر کا حصہ بن گئے۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم آف دی ایئر کے کپتان۔ ٹیسٹ ٹیم میں کسی پاکستانی کرکٹر کو جگہ نہیں ملی۔ السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مصطفیٰ گرین ویلی اپروو بائی SPCA۔ ملیرگنج سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر
बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी, बारिश, बर्फानी तोदे गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई। वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 76 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 22 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। मुताद्दिद घर भी बर्फानी तोदों तले दबकर तबाह हो गए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और मुतासरीन में टेंट, अद्वियात, कंबल और राशन तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। उन्होंने लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इमरान खान ने CMH मुजफ्फराबाद में जख्मियों की अयादत भी की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने बर्फबारी से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया जबकि मुतासरा ख़ानदानों से उनको दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान के साथ हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती कमेटी की इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। हुकूमती कमेटी में जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और अरबाब शहजाद शामिल थे जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से खालिद मक्सी, जुबैदा जलाल, एहसानुल्लाह रैकी और दीगर शरीक हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा कि हुकूमत के साथ भरपूर ताउन के बावजूद वादे पूरे नहीं किए गए। वफाकी काबीना में वजारत दी गई, न ही हलकों के लिए तरक्याती फंड्स जारी हुए। हुकूमती कमेटी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को यकीन दिलाया कि बलूचिस्तान में मसाइल का खात्मा वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नैब कानून लाने के लिए हुकूमत को 3 माह की मोहलत देते हुए कहा कि अगर अदालत ने किसी दफ़ा को गैर आइनी करार दिया तो ये फारिग हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब को प्ली बारगेन से रोक चुकी है और जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर लेती ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा हुकूमत नैब कानून के मामले को ज़्यादा तूल न दे। अगर अदालत ने किसी दफ़ा को गैर आइनी करार दे दिया तो ये कानून फारिग हो जाएगा। क्या हुकूमत चाहती है कि हम उसे फारिग कर दें? 3 माह में मसला हल ना हुआ तो अदालत कानून और मेरिट को देखते हुए केस का फैसला करेगी। सिंध काबीना ने IG पुलिस सैयद कलीम इमाम की खिदमात वफाक के हवाले करने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने IG पुलिस सैयद कलीम इमाम को हटाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ और इजलास में IG पुलिस सैयद कलीम इमाम की जगह गुलाम कादिर थेबो को IG सिंध बनाने का फैसला किया गया। काबीना अरकान ने कहा पुलिस को सियासी नहीं बनाना चाहते। जिस पुलिस अफसर को सियासत का शौक़ है वो सियासत करे। सिंध हुकूमत ने IG सिंध के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। काबीना इजलास के बाद सईद गनी ने मीडिया ब्रीफिंग में सईद गनी ने कहा कि पुलिस की नाअहली से बेगुनाह लोग मुतासिर हुए जो बायस शर्मिंदगी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अफसरान की पोस्टिंग भी सैयद कलीम इमाम ने मुदाखलत की। IG सिंध सैयद कलीम इमाम ने सिंध हुकूमत का एतमाद खो दिया है। कहा IG सिंध की खिदमात वफाक के हवाले करने का फैसला किया है। तबादले के लिए जो भी वजूहात दें वफाकी हुकूमत तस्लीम करेगी।
कराची में मीडिया से बात करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि उन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील में मदद की पेशकश की, लेकिन वफाक मदद नहीं लेना चाहता। उवैस शाह ने कहा कि वफाक घबराता है कि अगर मुझे इस मंसूबे में शामिल कर लिया तो सब सच सामने आ जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट के आने से अखराजात समेत दीगर कई बातें भी मालूम हो जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि गवर्नर सिंध बादशाह आदमी हैं, बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ पर गौर करें, बसों की दस्तयाबी को भी चेक करें। कराची में CNG बहरान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और CNG एसोसिएशन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, कहा तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मजदूरों से रोजगार छीन लिया। मुजाहिरीन के सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हुकाम ने कहा गैस की कमी है, कोटा मुकम्मल नहीं कर सकते। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की सेहत पर कोई गलत बयानी नहीं की, हम चाहते हैं वो जल्द वतन वापस आएँ। महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी देने की मुखालफत करते हुए रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए महकमा सेहत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए उसको मेडिकल बोर्ड के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया है। महकमा सेहत पंजाब मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देगा। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के मामले पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से ना निकालने के मामले पर हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अदालती नोटिस में कहा गया है कि हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, बताया जाए मरियम नवाज की दरख्वास्त पर ताख़ीर से फ़ैसला क्यों किया गया। वकील मरियम नवाज ने बताया कि वफाकी हुकूमत का गुज़िश्ता रात एक लेटर मिला है जिसमें हुकूमत ने नाम ECL से निकालने से इनकार कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इरफान कादिर का नाम तजवीज़ कर दिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी में पेशरफ, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौड़ में शामिल हो गए। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन अरकान के नामों में फरीक़ैन में इत्तेफाक हो गया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इरफान कादिर का नाम तजवीज़ किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इरफान कादिर की हिमायत का इंदिया दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान के अजला में शदीद सर्द रहेगा। कल्लात का दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -12 और कोयटा में -10 हो गया। शदीद बर्फबारी के सबब दीर और चित्राल को मिलाने वाली लवारी टनल का रास्ता तीसरे रोज़ भी बंद है, जिसके सबब सैकड़ों मुसाफिर दीर में महसूर हैं। ज़िंदगी के गम, तकालीफ और मसाइब को शायरी का रूप देने वाले मुमताज़ शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए हैं। मोहसिन नकवी गज़ल, नज़म और मरसिया निगारी में महारत रखते थे। उन्होंने गज़ल और नज़म में बेमिसाल ख़जाना छोड़ा, मरसिया निगारी से शोहरत हासिल की और 15 जनवरी 1996 को मोहब्बतों के मोहसिन को दहशत गर्दी के अंधेरे निगल गए। दिल को छू लेने वाली शायरी तख्लीक करने वाले और अपने दर्द को अल्फाज में पिरोने वाले मोहसिन नकवी 24 बरस बाद भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। पाकिस्तानी T20 कप्तान बाबर आजम विजडन की वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल हो गए। पाकिस्तानी स्टार बाबर आजम, जिन्होंने 2019 के दौरान ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, अब उन्हें विजडन की वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इस दौरान बाबर आजम ने 3 सेंचुरियां और 6 निस्फ सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप के दौरान भी बाबर आजम भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान होंगे, जबकि टेस्ट टीम में किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जगह नहीं मिल सकी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।